नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। इस हफ्ते भी G20 की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बीते दिनों G20 विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक 8 से 11 मई तक गोवा में संपन्न हुई। इस बैठक में G20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्य समूह की औपचारिक बैठक 8 मई को महिला नेतृत्व में विकास पर एक अलग कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षाविद, थिंक टैंक और नागरिक समाज के कई नामी गिरामी विशेषज्ञ और वक्ता शामिल हुए, जिन्होंने उभरते क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और महिला यूनिफॉर्म्ड सेवाओं में महिलाओं का नेतृत्व, महिलाएं और जलवायु लचीलापन और खाद्य प्रणालियों में बदलाव के एजेंट के रूप में महिलाएं कैसे काम कर सकती हैं, इन तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान चर्चा में ये विचार भी उभर कर सामने आया कि लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व में विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। इस मौके पर विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नागराज नायडू ने अपने स्वागत भाषण में पीढ़ीगत समानता का निर्माण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण के माध्यम से G20 उनकी पूरी सामर्थ्य का उपयोग करे। और हमारी सहयोगी नंदिता डागर ने इस मौके पर विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईनम गंभीर से खास बातचीत की। We are joined by the Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, G20 Secretariat, Ms. Enam Gambhir. She is part of the Development Working Group, third Development Working Group here at Goa. Ma'am, what are the concrete areas that India is focusing on in this working group? Development is really the heart and soul of the work of the G20, especially this year during India's presidency, are accelerating progress on the Sustainable Development Goals, which are focusing on, 4 core areas. One is looking at the digital transformation. So a transformative transition like digital transformation, which will completely, sort of transform the way we govern, the way the societies sort of develop and things like that. The second is transitions happening in a just manner globally. And the third thing is women-led development, core area for us. Also, we feel that these 3 major transitions will have such a multiplier impact on the Sustainable Development Goals that they will accelerate and also impact all SDGs, at the same time, all 17 SDGs. And the fourth area which is important is the lifestyle for environment. So we are basically taking forward Prime Minister's, core initiative on lifestyle for environment in the Development Working Group in G20. And so what we are discussing in the Development Working Group is priorities in terms of core high principles on lifestyle for environment that we want the G20 to adopt, which will, ensure that the developing countries' needs are met, that the basic needs are met, that as we are speaking of reducing consumption, we are also taking care of those whose consumption is very less already. और हमारी सहयोगी नंदिता डागर ने विकास कार्य समूह के सह अध्यक्ष और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नागराज नायडू से भी खास बातचीत की। Joining us on DD News and DD India is Mr. Nagaraj Naidu. He is the Joint Secretary in the Ministry of External Affairs in the G20 Secretariat, and he'll be telling us what are India's focus areas on this third Development Working Group meeting, which is happening currently underway in Goa. We are looking forward for some very substantive deliverables within the Development Working Group. We're looking at a G20 action plan for accelerating the sustainable developmental goals. We are looking at 2 things. One would be data for development for the developing South. We are working for something called as the data for development high-level principles. If this comes through, this will be first such endeavor in this regard. The other big deliverable that we are looking at is an action plan for women-led development. This is a core G20 presidency priority for India. Within this broad area, we are focusing on social and economic empowerment of women. We are talking a lot about care economy, what needs to be done to get women back into the labor force, what are the measures that governments need to put in place to ensure, for example, care infrastructure,
so that women are relieved of it. And we are also looking at the important role that women play as far as climate is concerned. We need more women negotiators, climate negotiators. We need to apply a gender lens in climate policy. Women contribute to food and nutritional security. That's an important dimension within the development working group. And the final one is, how do we bridge the gender digital divide? India is in a sweet spot because not only is it enjoying a very prominent geopolitical stature in the in the international community, but also has very good relations with the global south, as Prime Minister Modi had held a conference with the leaders of the global south. How will India impact their achieving the sustainable development goals? South Summit that we had organized in early January, it was in a way an initiative to engage all the developing south to kind of convey to us what do they want the G20 to do. Thank you so much, sir. More power to you. And as Prime Minister Modi always says, Vasudhaiv Kutumbakam, an actionable and robust presidency of India. Thank you so much. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हम इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभमय सर इस हमारे खास कार्यक्रम में। और सर, जैसा कि हमने कहा कि इस गोवा वाली मीटिंग में सर जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हुई है और महिला सेंट्रिक की बातचीत हुई है, वुमेन एंड इकोनॉमी इन इमर्जिंग सेक्टर्स पे बातचीत हुई, वुमेन्स लीडरशिप इन द यूनिफॉर्म सर्विसेज और किस तरह से वो क्लाइमेट रेजिलियंस और फूड सिस्टम में भी अपना रोल प्ले कर सकती है, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई है गोवा में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की। आपकी प्रतिक्रिया की जब हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इस तरह की चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं इसको कैसे समझा जाए और उनका क्या कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स में क्या कुछ रोल हो सकता है आने वाले दिनों में, इसको जरा समझाएं सर। तो असीम, हम जब बात करने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल सामने उभर के आ रहा है वो ये है ESG इश्यूज जी, एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। हर पहलू में, हर क्षेत्र में देखेंगे ESG काफी एक बड़ा महत्व लेके सामने आ रहा है। शेयर होल्डर्स से लेकर स्टेक होल्डर्स, कंपनी से ESG पर कितनी काम हो रही है इस पर ध्यान देने के लिए ज्यादा जोर है। और ESG का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो डाइवर्सिटी यानी कि इंक्लूसिवनेस यानी कि वुमेन्स रोल। तो ये सही है कि जब डेवलपमेंट की बात हो या कोई चैलेंजेस की बात हो उसमें चूंकि ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उनका क्या रोल है, उनकी वो सिर्फ नॉट ए सपोर्टर बट एज एक्टिव पार्टिसिपेंट दोनों तरफ रहेंगे कि भाई वो भी डिसाइड करेंगे कि क्या चीजों पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और जब देखें भारत में इस बारे में कई सारे कदम लिए जा चुके हैं जी। हमारे यूनियन बजट्स होते हैं, उसमें जेंडर बजटिंग का एक बहुत बड़ा सेक्शन रहता है कि कितना बजट का कितना अंश और किस तरीके से जेंडर इश्यूज को सामने ला रहा है। साथ में जो बहुत सारे सवालें हैं, जो बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें सरकार इज वेरी क्लियर कि जेंडर इश्यूज को काफी महत्व देना चाहिए। तो जैसा देखेंगे वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, जिससे काफी चर्चा करता है, वो भी बड़ा चीज सामने आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू हमारे सामने
ध्यान के लिए जी। पेश हो रहा है। जी, इसमें लेकिन सर जब हम कह रहे हैं कि इमर्जिंग सेक्टर्स जो हैं उनमें भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे भारत में बढ़ती जा रही है, वैश्विक स्तर पर भी बढ़ी है। इमर्जिंग सेक्टर्स में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां की आपको लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई भी सेक्टर इस तरह से हम ना देखें तो ही अच्छा है। महिलाएं अभी हर क्षेत्र में अपने बलबूते पर अपने कार्यक्षमता से सामने रहेंगे भी, और ऐसा कोई नहीं सेक्टर है कि इन पर वो ज्यादा रहेंगे, इनमें वो उनके रोल कम रहेंगे। ऐसा सोचना ही सही नहीं चाहिए। अभी वो पार्ट ऑफ दी वर्कर्स पार्टिसिपेशन, चाहे वो शॉप फ्लोर में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो, या चाहे कंपनी के या गवर्नमेंट के टॉप मोस्ट लेवल में, तो ये एक जिसे कहते हैं एक्सेप्टेड चीज हो चुका है। देखना यह है कि किस हद तक इस उपलब्धि को हर स्तर के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे आप बात कर रहे थे अभी गोवा में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का, किस तरीके से वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका कार्य कर सकते हैं, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही है इंपॉर्टेंट चीज कि क्या चीजें हैं जिस वजह से किसी सेक्टर में किसी जगह पे वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। अब जैसे देखेंगे हमारे आर्मी में बहुत दिनों तक एक अड़चन था, मिलिट्री फोर्सेस में कहाँ पे आए, लेकिन अभी जैसे सारे फोर्सेस में सारे जगह वुमेन पार्टिसिपेशन को खोल दिया गया। मतलब ये थोड़ी 50% पहुंच गए, वो टाइम लगेगा कि जैसे उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। लेकिन था कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन था, वो जो मुश्किलें थी, उसको हटाया गया है, और वुमेन अभी आर्म्ड फोर्सेस में सारे विंग्स में, आर्टिलरी से लेकर इन्फेंट्री सारी चीजों में वो भाग हो गए। जो दूसरा विषय था सर गोवा का, उसमें इसी से संबंधित बातें हुई कि वुमेन्स लीडरशिप इन द यूनिफॉर्म सर्विसेज, भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया भी, आपने जिक्र किया, और किस तरह से उसकी भागीदारी यूनिफॉर्म सर्विसेज में बढ़ सकती है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और खासकर यूनिफॉर्म सर्विस में एक बहुत बड़ा जरूरी एक चीज होता है कि आप जब देखेंगे कि जब शहरों में यूनिफॉर्म सर्विसेज में, मैं यहाँ पे पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस का भी रोल का जिक्र कर रहा हूँ कि शहरों में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वुमेन पुलिस बहुत जरूरी होता है। उनका प्रेजेंस बहुत सारे टेंस सिचुएशंस को सॉफ्टन करने में, लोगों को कॉन्फिडेंस देने, वुमेन को कॉन्फिडेंस देने में कि कहीं जब कोई वारदात हुआ है, किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप होता है, वहाँ पे वुमेन पुलिस पर्सनल का सामने रहना बहुत जरूरी रहता है, और वो हमने बार बार देखा है कि वो काफी इफेक्टिव सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह से ही हर पहलू में जब हम कहते हैं डिजास्टर रिलीफ में, डिजास्टर रिलीफ में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी रहता है, कि उस वक्त में बहुत सारे ऐसे, हमने जैसे टर्की में अभी हमारे फोर्सेस को भेजे थे, और उसको महत्वपूर्ण तस्वीरें आई थी जहाँ पे हमारे वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन बिल्कुल बहुत अच्छे और बहुत सुदृढ़ काम किए थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उनके प्रेजेंस सिर्फ टोकन ही नहीं, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन में, तो काफी फर्क आता है। बिल्कुल, इससे काफ़ी फ़र्क आया है, और जो भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि तमाम सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया है। जो एक लिंग आधारित भेदभाव है उसको खत्म करने की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। सोमय सर, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी बातें होंगी इस विषय पर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। और हमारी सहयोगी नंदिता ने इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधि से भी इस दौरान मुलाकात की और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में उनसे खास बातचीत की। Indonesia is also one of the economies which is fast developing, and even in this era of recession across the world, Indonesia is doing very well, just like India is. What transpired at this development working group meeting of G20 here in Goa on the first day?
Okay, I think one of the important part is that we are trying to agree on some how the G20 would accelerate the SDGs achievement, because we are only seven years left from the SDGs, and Indian presidency select the topics that are particularly addressing the acceleration of SDGs, such as today we discuss about women-led development. Anything else that you think, what do you feel about India's G20 presidency? How is India steering the conversations? How is India adopting a leadership position in the world right now? It's actually doing very well, and India enjoys a very prominent position amongst the League of Nations in the world community. I think as a part of the team in the last year presidency in Indonesia, I can see that India has worked so hard in preparing everything for this presidency, from the logistic and also substance matters, the hospitality, and also the coordination with the local governments, with the community. I think we have felt that India has worked so hard, and we are very thankful for that, and congratulations to India. शोमय सर हमारे साथ बने हुए। शोमय सर, इंडोनेशिया के प्रतिनिधि कह रहे थे कि 2030 का जो एसडीजी का गोल है उसको अचीव करने में सिर्फ 7 वर्ष का ही अब समय बाकी रह गया है। ऐसे में किस तरह से भारत अपना रोल प्ले कर सकता है इस दिशा में? बिल्कुल, और खासकर एसडीजी में वुमेन का रोल काफी ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिन पर अमल देना बहुत 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 जरूरत हो गया है, खासकर सोशल सेक्टर्स में। और इस पर साउथ के जो कंट्रीज हैं उन पर चूंकि पॉपुलेशन का प्रेशर वहां पे यहीं पे सबसे ज्यादा है, इसलिए इन सारी चीजों पर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, जितने सारे वुमेन सपोर्ट, इन सारी चीजों पर काम करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में एक दूसरे कंट्रीज अगर सब अपना एक्सपीरियंस बांटे तो उससे ज्यादा फायदा। चलिए सर, समय इतना ही है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। शुभमय भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, और ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ G20 के प्रतिनिधि भुवनेश्वर पहुंचे। जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज भुवनेश्वर में दूसरी संस्कृति समूह की बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में अलग अलग देशों के बीच संस्कृतियों को बढ़ाने और उन्हें बचाने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल्चर मिनिस्ट्री का कल्चर का दूसरा ग्रुप मीटिंग भुवनेश्वर में होने वाला है। आज कल परसों 3 दिन इस मीटिंग इधर आयोजित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश पर ये भुवनेश्वर एक कल्चरल सिटी है, एक हिस्टोरिकल सिटी है, एक पिलग्रम सिटी है। ऐसा सिटी में ये कार्यक्रम लगाना भारत का पूरा जनता संतोष है। अलग अलग देशों से कुछ डेलीगेट्स आए हैं और आने वाले भी है। आज इस कार्यक्रम में जो अलग अलग देशों के बीच में एकजुट होकर अपने अपने देशों में कल्चर को कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसा प्रमोट करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस बैठक में 4 प्रमुख सत्रों का आयोजन किया जाएगा। भुवनेश्वर सेशन में 4 प्रायोरिटी सेशंस होंगे। नंबर 1, प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये पहला डिस्कशन होगा। सेकंड डिस्कशन, हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। फोर्थ वन इज लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर द प्रोटेक्शन and the promotion of culture। तो इसके साथ इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।